ન્યૂઝમાં આપ સૌ પત્રકાર મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે કુલ 3 મુદ્દા ઉપર 3 અલગ અલગ બાબતો ઉપર આપને પ્રેસ માટે અહીંયા આમંત્રણ આપેલું છે। પહેલા તો અમારી સાથે પ્રેસમાં ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પ્રવક્તા માનનીય આલોક શર્માજી અત્રે ઉપસ્થિત છે। અમારા ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના ઉપપ્રમુખ અને અમદાવાદ લોકસભાના પ્રભારી, અમદાવાદ શહેરના પ્રભારી એવા બિમલભાઈ શાહ ઉપસ્થિત છે। ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ કિસાન સેલના ચેરમેન માનનીય પાલભાઈ આંબલિયા અત્રે ઉપસ્થિત છે। અમારા પ્રવક્તા, સાથી પ્રવક્તા માનનીય અમિતભાઈ, ડૉક્ટર અમિતભાઈ નાયક અને હિરેનભાઈ બેંકર ઉપસ્થિત છે અને જયપુરથી આવેલા CL યાદવ CA છે, એ પણ અમારી સાથે ઉપસ્થિત છે। સૌપ્રથમ સાંજના ભૂલેલા સવારે ઘેર પાછા આવે કે સવારના ભૂલેલા સાંજે ઘેર પાછા આવે એમ અમારી સાથે વર્ષોથી યુવાનો જે જોડાયેલા હતા તેઓ થોડાક સમય માટે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા હતા એવા માનનીય અમારા મિત્ર અને અમારા સાથી, જેમણે સોશિયલ મીડિયામાં પણ એમનું ખૂબ જ પ્રદાન હતું, અસારવા વિસ્તારમાં પણ પ્રદાન હતું અને ત્યાંના તેઓ વોર્ડ પ્રમુખ પણ રહી ચૂકેલા હતા એવા ઉદયભાઈ રોયને અને એમની સમગ્ર ટીમને અમે કોંગ્રેસની અંદર આમ આદમી પાર્ટીમાંથી ફરીથી કોંગ્રેસની અંદર આવકારીએ છીએ અને હું વિનંતી કરીશ ઉદયભાઈને કે આપણા પ્રભારી શ્રી બિમલભાઈના હાથે તેઓ અને આખી ટીમ 1 by 1 આવે, પહેલા એકલા ઉદયભાઈ આવે અને એમના હાથે કેસ પહેરીને કોંગ્રેસમાં ઘર વાપસી કરે। उदयभाई पाछळથી તમે આવી જાઓ ને, અહીંયા જોડે ઉભા રહો છો। हाँ बस आप आगे जाइए। सर आप भी खड़े हो, एक मिनट। एक ही बात आप भी इधर जाओ, उधर से जाओ पीछे से। बाकीना मित्रों पण આવી જાય તો જોડે। अरे मैं जो कह रहा हूँ पीछे से जाओ ना, कुछ नहीं चलेगा, उधर से जाओ। सबका ग्रुप फोटो कराओ एक बार। વિશાલભાઈ, તમને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। તમે મિત્રોને પાછા લાવવામાં બહુ સારી મહેનત કરી છે। છેલ્લે રાખી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। आ जाओ भाई, इधर आ નીચે ઉભા રહી જાઓ, નીચે આવી જાઓ, ઉપર જ જવું છે બસ। ઉદયભાઈ તમે વચ્ચે આવો। વચ્ચે જાઓ ઉદયભાઈ, ઉદય ભાઈ વિશાલ તું પણ આવી જા। ઉદય યુ જસ્ટ સ્ટેન્ડ હિયર। તમે આ બાજુ આવી જાઓ મિત્રો બધા। વાયર ખાલી નીચે જો વાયર બધાનો બે ચાર મિત્રો આવો, નજીક આવી જાઓ। નજીક આવી જાઓ તો કાકા, નજીક આવી જાઓ। ચાલો ઉદય, હવે સાહેબ બધા ચાલો। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। खूब खूब आभार सर्वे मित्रों। भाई को उसको ऊपर बुला लो, आप स्टेज पे उदय भाई आप आ जाओ, कुर्सी ले लो, आ जाओ, बैठो भाई भाई साहब। તમે મુકેશભાઈ શાહ, તમે પણ ઉદયભાઈને લાવવામાં બહુ જહેમત કરી છે, ખૂબ ખૂબ આભાર આખી ટીમનો। ભરતભાઈ રાણા, આપ પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। करो भाई, રોલિંગ ભાઈ, ધવલ તું આ બાજુ આવી જા ને, આને બેસાડી દે। હવે હું વિનંતી કરીશ
અમારા ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા આલોક શર્માજીને કે તેઓ આપની જોડે પ્રેસ વાર્તાને સંબોધન કરે। धन्यवाद हेमांग भाई। मंच पर उपस्थित हमारे तमाम कांग्रेस के लीडर्स और पत्रकार बंधुओं, आज के इस प्रेस वार्ता में राजीव गांधी भवन में आपका तहे दिल से स्वागत। आज दो विषयों पर हम आपसे बात करेंगे। एक इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड विषय है और दूसरा विषय अभी मोदी साहब का एक इवेंट खत्म हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे। मोदी साहब ने अभी सुबह कुछ चीजें नेशनल मीडिया पर आकर और रीजनल मीडिया पर आकर कुछ बातें कही हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो हर चीज को उत्सव में बदल देते हैं और उनका अगर बस चलता तो वो मोरबी को भी उत्सव में बदल देते। देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़ा प्रधान है, कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने अभी एक लिस्ट तो जारी नहीं की, लेकिन एक प्रेस रिलीज शायद रिकॉर्डिंग करके पहले ही रात को रख लेते हैं। वो 71,000-70,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मैंने दिया है। हमने कुछ दिन पहले भी जब उन्होंने इसी तरह का स्टंट किया था, तब भी हमने तमाम सवाल उठाए थे कि मोदी साहब आप तो कहने वाले थे 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, अब आप टुकड़ों में जिस तरह से इसको चुनावी स्टंट बना रहे हैं, ये युवाओं की मेहनत का अपमान है। आप युवाओं की मेहनत पर राजनीति कर रहे हैं, हमें सख्त आपत्ति है। आप जिस तरह की लिस्ट लेकर आते हैं, जिस तरह के वक्तव्य देते हैं, हमारे तीखे सवाल हैं। सबसे पहला सवाल हमारा यह है कि जो 70,000 से ज्यादा की बात आप कर रहे हैं, पैरामिलिट्री में इतना हो गया, उसमें इतना हो गया, पिछले 75,000 का व्हाइट पेपर लेकर आइए मोदी साहब कि किस किस डिपार्टमेंट में किस किस पद पर कितने लोग गए, उनके एड्रेस के समेत। अगर बीजेपी में ताकत है, भाजपा में, तो उसको वेबसाइट पर डालें कि 75,000 रोजगार कहां गए, किसको मिले, कब मिले, किस पोस्ट पर मिले। आज दोबारा से हम पूछ रहे हैं कि जो आप 70,000 से ज्यादा की बात कर रहे हैं, वो किस विभाग में हैं, किस पदों पर हैं, उनका एग्जाम कब हुआ, उनका नोटिफिकेशन कब में निकला, उनका एडवर्टीजमेंट 4 साल पुराना तो नहीं है, उनका प्रोसेस जो है वो 2 साल, 3 साल, 4 साल पुराना से चल तो नहीं रहा था। क्या आप गुजरात के चुनाव के लिए बच्चों के रिजल्ट को रोक कर बैठे हुए थे? आपने केवल चुनावी अपना स्टंट बनाना था, क्या इसलिए आपने रिजल्ट को रोका हुआ था कि 50 शहरों में मैं उसको इवेंट बनाऊंगा और उसके बाद? क्या ये सारे रिजल्ट एक ही दिन आए हैं? और अगर ये रिजल्ट पहले आए थे, क्योंकि लगभग 80 लाख से ज्यादा पद सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली हैं और लगभग 3 लाख से ज्यादा पद गुजरात सरकार में खाली हैं, तो क्या आप इस बात का इंतजार कर रहे थे कि गुजरात में चुटनी शुरू होगी और उसके बाद हम इसको इवेंट करके और हम इस तरह का काम करेंगे? मोदी साहब, हमारा सबसे पहला कहना यह है कि आप इस पर व्हाइट पेपर लाइए। 24,000 पद आपने पैरामिलिट्री में बताए हैं। आप बताइए कितने आर्मी में आपने पद भरे? अग्निवीर और अग्निपथ के ऊपर जिस तरह का आपने पूरे देश में माहौल बनाया, हजारों केस बच्चों के ऊपर हो गए क्योंकि उन्होंने आपकी नीति का भरपूर विरोध किया। फिर आपने हजारों केस लाद कर उन बच्चों की पूरी तरह से आत्मा को कुचल दिया। हम पूछना चाहते हैं, अग्निपथ और अग्निवीर में कितनी भर्तियां हुई हैं? और व्हाइट पेपर दोनों जो 75,000 और 71,000 की आपने आंकड़े दिए मोदी साहब, वो डिपार्टमेंट वाइज लेकर आइए। उनका चयन का प्रोसेस कब शुरू हुआ, एग्जाम कब हुए, किस विभाग ने चयन किया, कौन से डिपार्टमेंट में गए? दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री जब गुजरात में 27 साल में जब उन्होंने अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया, उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं।
आज एक आंकड़ा और मोदी साहब ने दिया, 35 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोदी साहब ने मुद्रा लोन दे दिया। इस देश के अंदर लगभग 23 से 24 करोड़ परिवार हैं, आप इसको 25 भी मान सकते हैं रफ फिगर में। हिंदुस्तान में लगभग 25 करोड़ परिवार हैं और वो कहते हैं 35 करोड़ से ज्यादा मैंने मुद्रा लोन दे दिए। हम पूछना चाहते हैं मोदी साहब, वो 35 करोड़ लोग जिनको मुद्रा लोन मिला उसकी लिस्ट भी आप सार्वजनिक करें। आप देश के प्रधानमंत्री, अच्छा नहीं लगता है कि आपके दिए गए आंकड़ों पर हर रोज सवाल खड़े हो जाएं, लोग आपको झूठा कहें। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, यह हमसे स्वीकार नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि मोदी साहब को कोई भी किसी भी तरह का झूठा शब्द इस्तेमाल करे कि देश के प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलते हैं आंकड़ों के मामले में। वैसे तो इस सरकार जो है ये नो डाटा गवर्नमेंट है। इस सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं है, कोरोना में कितने लोग मरे, कहां कितने लोग मरे, इनके पास कितने ऑक्सीजन से मरे, इनके पास कोई आंकड़े नहीं। लेकिन जब इनको वोट लेनी होती है तो सारे आंकड़े इनके पास आ जाते हैं। 35 करोड़ लोगों को जो मोदी साहब मुद्रा लोन की आप बात कर रहे हैं, उस पर व्हाइट पेपर लाइए, उस पर बताइए 35 करोड़ परिवार कौन से हैं जिनमें मुद्रा लोन मिला है। एक व्हाइट पेपर हमें एम्प्लॉयमेंट पर चाहिए, दूसरा हमें व्हाइट पेपर चाहिए मुद्रा लोन पर, क्योंकि आज आपने मात्र 2 ही स्टंट के ऊपर बात की है। हम पूछना चाहते हैं कि जो 22 पेपर गुजरात में आउट हुए थे मोदी साहब एग्जाम से रिलेटेड, उसका क्या हुआ? 340 पदों के लिए, तलाती के लिए जो 17 लाख बच्चों ने एप्लीकेशन दी थी, उनमें से कितनों को रोजगार मिल गया? उनका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कब देंगे? ये डबल इंजन नहीं, ये ट्रबल इंजन की सरकार है। वहां पर भी केंद्र में भी झूठ बोलते हैं और यहां पर भी झूठ बोलते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये चुनावी स्टंट रोजगार के ऊपर बंद कीजिए, बच्चों की भावनाओं के साथ मत खेलिए। मोदी साहब, वोट सब कुछ नहीं होती है। अगर आपके अंदर हिम्मत है, कांग्रेस पार्टी 24 घंटे का समय देती है, भाजपा इसके ऊपर व्हाइट पेपर लेकर आए, नहीं तो हम इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। ये केवल चुनावी गिमिक है आपका, नहीं तो व्हाइट पेपर आए। 71,000 और 75,000 जो रोजगार की भर्तियां हुई हैं, क्या वो 1 साल में हुई हैं? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने आज ये बोला है कि 1 साल में हमने ऐसे 10 लाख वैकेंसी देने का वादा किया। कंप्लीट डिटेल्स के साथ हमें 24 घंटे का समय हम दे रहे हैं बीजेपी को, नहीं तो हम इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत करेंगे कि झूठ बोलकर देश के बड़ा प्रधान वोट बटोर रहे हैं। अब हम कुछ आंकड़ों पर भी बात कर लें। मोदी साहब, आपने तो काफी लंबा चौड़ा ज्ञान देश को दिया है कि जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े हैं जो लगातार घट रही है। अगर 1994-95 में जब आखिरी हमारी सरकार गुजरात में रही है तो 18.5% जीडीपी ग्रोथ रेट था गुजरात का, जो घटकर पिछले साल 1.35 1.35% जीडीपी ग्रोथ रेट हो गया है। मोदी साहब, इस पर भी बोलिए कि गुजरात का ग्रोथ रेट लगातार क्यों गिर रहा है। दूसरा आंकड़ा, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये लगातार बढ़ रहा है। अगर 2000 की बात करें तो 16.40 था हिंदुस्तान का, आज ये बढ़कर 28.26 हो गया है। लगभग 40% अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी है। मोदी साहब, इस पर भी उत्तर दीजिए। आपने इवेंट तो कर दिया, काफी अच्छे कैमरे लगे हुए थे वहां पर, आपने अच्छा बोला भी, लेकिन इन पर भी जवाब दीजिए। इसके बाद टोटल एम्प्लॉयमेंट रेट, 2009 से अगर शुरू करें हम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर, 2009 में ये 5.5% थी और अक्टूबर 2022 में ये लगभग 8% है।
5.25 से 8% से ऊपर चली गई, 5.24% से बढ़ी है और 8.04% रूरल एरियाज में हो गई, लगभग 8% के करीब। 5.25 से अगर 8 से ऊपर जा रही है तो लगभग 60% 2009 के बाद से अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, और इसमें जो मैक्सिमम बढ़ी है वो आपके कार्यकाल में बढ़ी है। 2017-18 में ये पीक पर चली गई थी, 19 में ही ये 7 का आंकड़ा क्रॉस कर गई थी, कोरोना से पहले। मोदी साहब, ये इवेंट और स्टंट करना बंद कीजिए, आंकड़ों पर बात कीजिए, मुद्दों पर बात कीजिए। एक खास बात और है, गुजरात के अंदर लेबर पार्टिसिपेशन रेट 1995 में जब हमारी सरकार गई थी तो 46% था, 46%, और 2021 में ये घटकर मात्र 23.5% रह गया। लेबर पार्टिसिपेशन रेट हाफ हो गया। गुजरात के लोगों का लेबर पार्टिसिपेशन रेट हाफ हो गया। उसके बाद लगातार महिलाओं का पार्टिसिपेशन गुजरात में काम करने में, कामकाजी महिलाओं का लगातार गिर रहा है। अगर 1990 की हम बात करें तो 31.5% था, 2019 की बात करें तो ये घट के 20% रह गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से लगातार वर्कफोर्स गिर रही है, गुजरात में मिनिमम वेजेस राजस्थान से भी कम है। गुजरात में मिनिमम वेजेस पर डे 285 रुपए है, जबकि राजस्थान में 365 रुपए। मोदी साहब, आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इन मुद्दों पर भी बात करें। पूरे देश के अंदर, क्या विश्व के अंदर, लेबर पार्टिसिपेशन रेट इन एग्रीकल्चर घटता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि 2018-19 में लेबर वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जो टोटल वर्कफोर्स है 100 लोग काम करते हैं, तो एग्रीकल्चर में 41 लोग काम करते थे 2018-19 में, और ये बढ़कर 2020-21 में 45% हो गया। मतलब हिंदुस्तान में जो डिपेंडेंट लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे 5% बढ़ गए 2 साल में। मोदी साहब, अगर आपकी सरकार ने काम किया, रोजगार सृजन किए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, तो एग्रीकल्चर में लेबर 5% कैसे बढ़ गई, जरा इसका उत्तर दे दीजिए। और आपकी सरकार ने अगर रोजगार सृजन किया तो मनरेगा में लगभग 30 से 40% रजिस्ट्रेशन जॉब कार्ड ज्यादा क्यों बन रहे हैं पिछले 2 साल से? आपने तो कहा था ना, मनरेगा जो है वो कांग्रेस की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आज हम पूछना चाहते हैं, स्मारक पे ये पेंट पॉलिश कौन कर रहा है? ये कौन सी सरकार है जो कर रही है पिछले 8 साल से? जब जब आप एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, देश के अंदर सबसे फेल प्रधानमंत्री अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के नाम पर रहा है तो उनका नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी है। हम चाहेंगे इसके ऊपर भी व्हाइट पेपर आए, जो मैंने तमाम आंकड़े दिए हैं कि मनरेगा में आप लोगों ने क्या क्या किया है और किस तरह से आपने युवाओं के तमाम जो उनके अरमान थे उनको आपने कुचल दिया। मोदी साहब, एक बड़ी दिक्कत है आपके साथ। आप हमेशा से गुजरात के लोग जो हैं बड़े भोले हैं, इमोशनल है, आप उनके साथ इमोशनल कार्ड प्ले करना चाहते हैं हमेशा। अगर किसी ने, कोई व्यक्ति ने कोई मुहावरा भी इस्तेमाल कर दिया तो आप कहेंगे कि साहब ये तो गुजरात का अपमान हो गया, ये तो गुजरात के लोगों का अपमान हो गया, ये तो ये हो गया, ये तो वो हो गया। ये इमोशनल कार्ड खेलना बंद करें, युवाओं को रोजगार दें, महंगाई को कैसे कम करना है गुजरात में आकर उस पर बताएं कि मैंने नोटबंदी की थी, अब मुझे वोट दे दो।
नोटबंदी बहुत सफल कार्यक्रम था आपका, आप कहते हैं नोटबंदी पर वोट मांगिए। मैं 3-4 वीडियो यहां पर चलाना चाहूंगा। मोदी साहब, ये आपके लिए बहुत लोगों ने कुछ वक्तव्य दिए थे और ये सब लोग जो हैं या बीजेपी में या तो अब कैंडिडेट हैं या पहले कैंडिडेट थे। हम जानना चाहते हैं, जब आप इमोशनल कार्ड खेलते हैं तो इनका नाम भी लिया करें। आप बताएं कि भाई जो 80,000 रुपए का जो मशरूम अल्पेश ठाकुर बताते थे कि आप 80,000 रुपए का मशरूम खाते हैं, वो क्या वास्तव में 80,000 का था या कुछ कम ज्यादा का था? सबसे पहला स्टेटमेंट, इनके कैंडिडेट दिल्ली में रहे, इनका नाम है कपिल मिश्रा। बोल दीजिए सर, क्योंकि ये टेक्निकल फॉल्ट है, कुछ आपको बोलना पड़ेगा। करो भाई शुरू, नहीं तो मैं फिर वैसे बोल देता हूं। बोल दीजिए। कपिल मिश्रा एक इनके कैंडिडेट हैं, हुए थे अभी दिल्ली में। इन्होंने विधानसभा में जिस तरह के भाषण दिए थे, वो भाषण पूरे देश को याद है। उन्होंने किसी महिला का भी जिक्र किया था। हम देश के प्रधानमंत्री हैं, उन सेंटेंसेस को हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं। क्या कपिल मिश्रा को मोदी जी ने दिल से माफ कर दिया है या नहीं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अल्पेश ठाकुर ने कहा था कि मोदी जी 80,000 रुपए का मशरूम खाते हैं। हम जानना चाहते हैं मोदी साहब, वो कौन सी दुकान से मशरूम आता था या नहीं आता था? वो कीमत बढ़ी है 80,000 की या वो कीमत घटी है? और क्या अल्पेश ठाकुर को जब आपने टिकट दिया था कुछ दिन पहले, तो क्या आपने अल्पेश ठाकुर को दिल से माफ कर दिया? और क्या उससे गुजरात का अपमान हुआ था कि नहीं हुआ था, कि देश के प्रधानमंत्री के रंग के ऊपर भी जिस तरह से टिप्पणी हुई थी? मोदी साहब, आपको हार्दिक पटेल जी, जो आपके आजकल एक कैंडिडेट हैं, उन्होंने कहा था कि आप यमराज हैं। क्या ये बात सच है कि नहीं, हम तो जानना चाह रहे हैं। और अगर आप यमराज हैं तो उससे गुजरात का मान बढ़ा था या घटा था? और क्या हार्दिक पटेल को आपने दिल से माफ कर दिया कि नहीं? क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर को तो आप दिल से माफ नहीं कर पाए। मोदी जी, आपको किसी ने फेंकू भी कहा था और वो बच्चा आपका कैंडिडेट है। वॉल्यूम बढ़ाइए भाई। देश के प्रधानमंत्री को किसी ने फेंकू कहा, वो आपका कैंडिडेट है। अगला, तो बढ़ा हुआ। ये इनके दिल्ली के एमएलए के कैंडिडेट रहे। इन्होंने देखिए मोदी जी के लिए क्या क्या कहा।
किसी ने किसी को गुंडा कहा, किसी ने तड़ीपार कहा, किसी ने फेंकू कहा, किसी ने यमराज कहा, किसी ने 80,000 का मशरूम खिलाया, ताइवान से लाकर, कहां से आया था वो। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं सारे वीडियो सच हैं या झूठे हैं ये, क्योंकि अब ये सारे कैंडिडेट आपके भाजपा में, और अगर ये सब कुछ सच है तो भाजपा ने ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट क्यों दिया जो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का अपमान करते हैं। मोदी साहब, ये इमोशनल कार्ड खेलना बंद कीजिए। किसने क्या क्या कहा, बहुत लंबी लिस्ट है। आपने तो अपनी महिला एक सांसद जो थी, अपनी सहयोगी, उनको शरूपन खा तक कहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी काओ, जर्सी बछड़ा, रेनकोट और पता नहीं क्या क्या आपने तमाम लोगों के लिए कहा है। हम उस पर जाना नहीं चाहते, लेकिन हम केवल इतना कहना चाहते हैं, मोदी साहब, इमोशनल कार्ड खेलना बंद कीजिए। ये बताइए कि मोरबी में 135 जो लोग मरे उसका जिम्मेदार कौन है। बताइए तक्षशिला की एसआईटी कहां तक पहुंची। बताइए लट्ठा कांड की एसआईटी कहां तक पहुंची। ये सब जो स्टेटमेंट है, 1 किलो गाली, 2 किलो गाली, 5 किलो गाली, अब देश के प्रधानमंत्री हैं और गुजरात का चुनाव हो रहा है, किसी गली मोहल्ले का चुनाव नहीं हो रहा है। मुद्दे पर बात कीजिए मोदी साहब, मुद्दे पर आपको बात करनी पड़ेगी। मुद्रा लोन पर व्हाइट पेपर लाइए, जो आपने रोजगार का आज इवेंट मैनेजमेंट किया उस पर व्हाइट पेपर लाइए। युवाओं के इमोशन से खेलना बंद कीजिए। गुजराती भोले लोग हैं, एंटरप्राइजिंग लोग हैं, उनकी भावनाओं से खेलकर सत्ता को हथियाना बंद कीजिए। एक मुद्दा और है, हमारे किसान सेल के चेयरमैन हमारे साथ हैं, वो इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ है। उसके बारे में स्वयं वो बताएंगे कि जब जब बड़े लीडर्स बीजेपी के आ रहे हैं तो बीजेपी कितनी घबराई हुई। मोदी साहब आते हैं, नड्डा जी आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, या मुख्यमंत्री कहीं पर जा रहे हैं तो किस तरह से प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, उसके बारे में हमारे किसान सेल के चेयरमैन बताएंगे। और ये जीता जागता प्रमाण है कि भाजपा हार रही। हमारे किसान सेल के चेयरमैन आमली भाई, माइक लाओ। ले भाई। पालभाई आंबलिया। पालभाई, हाँ, पालभाई आंबलिया। પહેલાં તો આપ સૌનું સ્વાગત છે। ગુજરાતના તમામ મીડિયાના મિત્રો સાક્ષી છે કે ગુજરાતમાં જ્યારે જ્યારે છેલ્લા 5 વર્ષની અંદર ખેડૂતોએ જ્યારે જ્યારે આંદોલન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો એમને આગલા દિવસે કે 2 દિવસ પહેલાં હોમ અરેસ્ટ કર્યા છે। જ્યારે દિલ્હીમાં ખેડૂત આંદોલન ચાલતું હતું ત્યારે ગુજરાતના મોટા ભાગના ખેડૂતોને 3-4 દિવસથી લઈ અને 37 દિવસ સુધી હોમ અરેસ્ટ કરેલા છે। આ આપણે બધા આ વાતથી વાકેફ છીએ, પણ ત્યારે ચૂંટણી નહોતી। અત્યારે ચૂંટણીનો સમય છે। ઇલેક્શન કમિશન આખે આખો ડોર સંભાળીને બેઠું છે। ત્યારે કોઈ નાગરિક એના મતદાર વિસ્તારમાં જ્યારે કોઈ નેતા આવતો હોય ત્યારે એમને ઘરે બેસાડી દેવો, 24 કલાક સુધી હોમ અરેસ્ટ કરવો, ઘરની બહાર નીકળવા ના દેવો। એને અત્યારે ખેડૂત આગેવાનો જેટલા છે એ ખેતી સાથે જોડાયેલા છે। એને એવું નથી કે ચૂંટણી પ્રચાર જ કરવો છે, એનું ખેતીનું કામ પણ છે। લગ્નની સિઝન છે, અત્યારે લગ્નના સિઝનના સમયે પણ હોમ અરેસ્ટ કરવો એ પણ ક્યાંક ને પણ સૌથી મોટો સવાલ ચૂંટણી પંચ ઉપર ઊભો થાય છે કે એક નાગરિકને જે સ્વતંત્રતાનો અધિકાર મળ્યો છે, ચૂંટણી સમય દરમિયાન જે કોઈ પોતાની વાત જ્યાં પણ કરવા જવી હોય
એ વાત કરવા જવાનો જે અધિકાર મળ્યો છે, આ અધિકાર ઉપર અત્યારે ભાજપ ક્યાંક ને ક્યાંક પોલીસને આગળ કરી અને એના ઉપર તરાપ મારી રહ્યું છે અને આ લોકશાહીનું ખૂન થાય છે, આ લોકશાહીનું ચીરહરણ છે. હું તારીખ સાથે કહું છું, 18 તારીખે નરેન્દ્ર તોમર ધાંગધ્રા આવે છે. ધાંગધ્રાનું ગામ છે મેથાણ. મેથાણ ગામના વતની જેકેભાઈ પટેલ, એમને આગલા દિવસથી પોલીસ એમને ઉપાડી લે છે, એમને પોલીસ સ્ટેશનમાં અંદર 24 કલાક બેસાડી રાખે છે અને ગુનો 69 મુજબ એમને પછી મુક્ત કરવામાં આવે છે. એની પોલીસ સ્ટેશનમાંથી જે પરચી છે, આ એની એક કોપી પણ અમે તમને આપીએ છીએ આધાર પુરાવા માટે કે આ ઘટના બની છે 18/11/2022 દિવસે. 20 તારીખે ફરીથી જેકેભાઈને પકડવામાં આવે છે, કારણ કે નરેન્દ્રભાઈ મોદી આવે છે દુધરેજ સુરેન્દ્રનગરમાં ત્યારે. એટલે 18 તારીખે તો 24 કલાક જેકેભાઈ રહ્યા, વળી એને મુક્ત વાતાવરણ 19 તારીખનું એક દિવસ મળ્યું. 19 તારીખે રાતેથી ફરી પાછા જેકેભાઈને અરેસ્ટ કરી લેવામાં આવે છે અને 20 તારીખે નરેન્દ્રભાઈ જાય પછી એમને મુક્ત કરવામાં આવે છે. 20 તારીખે જયારે જેતપુરની અંદર કાર્યક્રમ હોય છે, ધોરાજીમાં કાર્યક્રમ હોય છે, ધોરાજી ગામમાં પીઠડિયા ગામના વતની ભાઈ અમારા કિસાન કોંગ્રેસના ચેરમેન, રાજકોટ કિસાન કોંગ્રેસના ચેરમેન આવી ચૂંટણીના સમયે હોદ્દેદાર છે, કોંગ્રેસનો ઓફિશિયલી હોદ્દેદાર છે, એમની ધરપકડ કરવામાં આવે છે, એમના ઘરે હોમ અરેસ્ટ કરી દેવામાં આવે છે. એવી જ રીતે ચંદ્રેશ પરમાર અને ગોવિંદ ડોબરિયા, આ બંને પણ અમારા કિસાન કોંગ્રેસના આગેવાન, એમને પણ ઘરે હોમ અરેસ્ટ કરી દેવામાં આવે છે. સૌરાષ્ટ્ર ઝોનના ગુજરાત ખેડૂત સભા જે છે એના સૌરાષ્ટ્ર ઝોનના પ્રમુખ પ્રવીણભાઈ પટોડિયાને એમના ઘરે હોમ અરેસ્ટ કરી દેવામાં આવે છે. પ્રમોદ ત્રાડાને જે ગુજરાત ખેડૂત સમાજના જ આગેવાન છે, એમને પણ ત્યાં એમના ઘરે હોમ અરેસ્ટ કરી દેવામાં આવે છે. આવી જ રીતે 1 નવેમ્બરે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે મોરબીમાં જે ઘટના બની, એ ઘટનામાં જે સેવા કરવા વાળા લોકો હતા, ત્યાં સેવા કરતા હતા, એવા લોકોને પણ ચિંતન રાજ્યગુરુ, દેવેન્દ્રસિંહ જાડેજા, મુકેશ ગામી, જયંતિભાઈ પટેલ, મહેશભાઈ રાજ્યગુરુ, કેડી પડસુમિયા, રમેશ રબારી, રાજુભાઈ કાવર, ચેતનભાઈ અરવાડિયા અને રામભાઈ રબારી, આ લોકોને પણ તે દિવસે અરેસ્ટ કરી લેવામાં આવ્યા હતા. મહત્વનો સવાલ એ છે કે અત્યારે ચૂંટણી ચાલુ છે. અત્યારે જ્યારે કોઈ નેતા, મારા મતદાર જ્યારે જે હું વિસ્તારમાં હોઉં અને ત્યારે કોઈ નેતા આગલા 5 વર્ષ પહેલા જે વચનો આપીને ગયા હોય, એ વચનો મારે યાદ કરાવવું અને એમાંથી કેટલા એને પાલન કર્યા છે કે કેટલા પાલન નથી કર્યા, આ પૂછવાનો મારો અધિકાર છે. મને કોઈ રોકી ન શકે. એટલા માટે કે આ મને ભારતના બંધારણે સત્તા આપી છે. ભારતના બંધારણથી ઉપરવટ જઈને કોઈ નથી આ દેશની અંદર. સૌથી સર્વોપરી ભારતનું બંધારણ છે અને ભારતના બંધારણે આપેલા મૂળભૂત અધિકારો છે અને મારા મૂળભૂત અધિકારોનું પાલન કરાવવું એ ચૂંટણી પંચની ફરજ છે. એટલે આજે અમે લેખિત ચૂંટણી પંચને પણ આ બાબતે ફરિયાદ કરવાના છીએ. ધન્યવાદ. एक 10 लोग. देखिए, ये बहुत दुखद है. मोदी जी यहाँ पर आए जब सिविल हॉस्पिटल के कार्यक्रम में, तो लगभग 50-60 लोगों जो हमारे संपर्क में थे उनको इस तरह से प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर, जब मोदी जी, अमित शाह जी कहीं पर मूवमेंट करते हैं तब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं. इस तरह की एक घटना बहुत दुखद और भी है कि जो बच्चे रशिया और यूक्रेन से MBBS वाले आए थे 2nd, 3rd और 4th ईयर के, जिन्होंने वहां पर फीस दी, वो 6-7 महीने से ढूंढ रहे हैं कि भाई सरकार हमारे लिए क्या कदम करेगी, क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर सकती है, नेशनल गवर्नमेंट को कदम उठाना है. उन्होंने एक बार अहमदाबाद में अपना धरना प्रदर्शन किया और मोदी साहब, क्योंकि वो तो साहब है ना, मोदी साहब नाराज हो गए. आज तक उनके लिए कोई समाधान नहीं निकला. जो व्यक्ति भाजपा सरकार के खिलाफ कभी भी आवाज उठाता है उसको या तो जेल के सलाखों के पीछे बंधक बनाने का पूरा तैयारी कर ली जाती है, या डराया जाता है, या प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर घंटों थानों में बैठाया जाता है. उनका प्रशासन तो इसी तरह का है. लेकिन अब इलेक्शन कमीशन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रशासन अब इलेक्शन कमीशन के अधीन है. इस तरह की घटनाएं प्रशासन को देखा जाए कि प्रशासन इस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को और खास तौर पर
खेडूतों को परेशान ना करें। उन्होंने अपने अधिकारों की आवाज उठाई थी। 3 काले कानून आपने गलत लगाए, आपने वापस उस पर यू टर्न लिया और अब आप चुन चुनकर जिन खेडूतों ने आंदोलनों में हिस्सा लिया उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करेंगे तो गुजरात की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। हमारा किसान सेल इस बारे में इलेक्शन कमीशन को लिखित में भी शिकायत देगा। अब आप लोगों के कोई प्रश्न है तो पूछें। देखिए, बहुत ही दुखद है किसी का भी सुसाइड करना, चाहे वो व्यक्ति अधिकारी हो और चाहे ना हो। सुसाइड अपने आप में एक बहुत ही दुखद घटना है। सबसे पहले तो हम उस परिवार के प्रति कांग्रेस पार्टी अपनी संवेदना व्यक्त करती है। मीडिया के माध्यम से ही हमें भी पता चला था और आप आज उसकी पुष्टि कर रहे हैं। इसमें जांच होनी चाहिए। क्या कोई व्यक्तिगत कारण रहे हैं, क्या कोई पारिवारिक कारण रहे हैं, या कोई किसी इलेक्शन कमीशन के बड़े अधिकारी का कोई दबाव था, या राज्य सरकार का किसी का दबाव था। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। एक इलेक्शन अधिकारी और चुनाव के समय अगर इस तरह की घटना घटती है तो उसके अंदर पूरी तरह से एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और कोई प्रश्न आपका? प्रणव नहीं है, लिखा नहीं मुझे। 4 बजे एक इंपॉर्टेंट प्रेस और है। जगदीश ठाकुर साहब और पवन खेड़ा जी करेंगे। कुछ सनसनीखेज चीजें आपके सामने आएंगी। हम पुनः आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहां उपस्थित हों। बहुत बहुत धन्यवाद।